Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter New Centers of Power, and under this chapter we are discussing European Union. In the previous classes we have discussed about the making of European Union, the timeline we have discussed. Then we have also discussed about how European Union, which was created as an economic association, with the passage of time we see that it started to work like a political organization. And what are the factors which make it a political organization? We have discussed about it, and we have also seen that there are some obstacles also in the path of becoming it a political organization. And then we are discussing the economic, political and diplomatic and military influence of EU, which make it one of the most powerful organizations in the contemporary world politics. So we have discussed its economic influence in the previous class, like its economy is the second largest economy in the world, and we have seen that how we come to this conclusion that its economy is second largest by observing its GDP. Its GDP was in the year 2016 was $17 trillion, which was next to the US. Other than this, we see that its currency euro is also one of the strongest currency which can pose a challenge to US dollar. Then we have seen that its share in the world trade is also very high, and it is more than that of United States, because of which it gets a kind of more influence in solving the trade disputes in its favor. And we have also seen that in international economic organizations like World Bank and IMF, International Monetary Fund, this the European Union has its influence in these organizations also. So these are the economic influence of European Union. And now after that we have discussed the political and diplomatic influence also, like two members of European Union, like Britain and France, they are the permanent members of Security Council, and it is really very important. A country plays a very prominent role in the world politics if it is a permanent member in the Security Council, because it means that the country has the veto power, and the veto power is very much powerful, है ना. तो और इस कारण से what we find that EU is included in that organization which can even influence the policies of US as well. Whenever US is formulating any policy regarding world politics, in that policy making, this policy making of US can be influenced by the EU because of its political and diplomatic influence. And we have also seen that European Union does not believe in coercion and military force. Rather than believing in coercion and military force, this union focuses on negotiations, diplomacy, economic investment, and through all these it tries to play an effective role in the contemporary world politics. And we have seen that it has been an effective force in its dialogue with China on human rights and environmental degradation. Because of this quality of
European Union. So we have discussed up to this, and now we are discussing the military influence of European Union. And in this we have seen that the combined armed forces of European Union are the second largest in the world. The first is of course US, and at the second position we see European Union is there. If we consider the military force, it is the second largest. And then we see that its spending on defense is also second. The percentage of budget which is spent on defense is the second largest after US. तो अगर कई सारी चीज़ों में हम ये देख रहे हैं, we are observing that European Union is at the second place, though it is combined force. 27 countries are there. Brexit के बाद इसमें 27 countries है, तो 27 countries के को मिला करके इसका जो स्ट्रेंथ है वो कई मामलों में यूएस के बाद ये आता है. तो इस तरह से इसका पावर काफ़ी इंक्रीज हो गया है ना. और इसके अलावा अगर हम यूरोपियन यूनियन के दो मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस को देखें तो दीज टू आर न्यूक्लियर कंट्रीज. दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स. दे आर ऑफिशियली न्यूक्लियर हैव कंट्री, है ना. और इन दोनों कंट्री के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है. 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स. एंड देन वी सी दैट इट इज ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड communication technology. So these are the influence, military influence of European Union. So its military is second largest. These are the points which must be there in the military influence of European Union. Second largest military. You don't यहाँ पर I have scarcity of space. तो second largest का मतलब ये कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग देख रहे हैं, है ना. And then we see its spending on defense. It is also second, है ना. Spending on defense is also at second position. Okay, and other than this we see that Britain and France are nuclear countries. Britain and France are nuclear countries, and in their nuclear arsenal there are approximately 550 warheads, nuclear warheads. Approximately 550 nuclear warheads in their arsenal. And other than this, one more thing is there, that second most important source of space and communication technology. Second most important source of space and communication technology.
Okay, so these are the economic, these are the military influence of European Union. Okay, and what we see that these are the main power of European Union. How can we say that European Union is a powerful organization, or it is a very influential organization in contemporary world politics? So these are the 3 points we will see. We will prove this that EU is very much powerful because it has economic influence, it has political and diplomatic influence, it has military influence. Okay, तो ये हमारे हो गए EU के स्ट्रेंथ, कैसे EU एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है. बट हियर व्हाट वी फाइंड दैट इट्स नॉट लाइक दैट कि EU हैज ओनली स्ट्रेंथ, है ना, ओनली strong points are there. It's not like that. Some weak points are also there. Some aspects of EU is there which make it we can say which make it comparatively weaker. अगर वो weak points नहीं होते तो ये और भी strong होता. तो कुछ weaknesses हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है. जैसे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी में देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इन ऑर्डर टू वर्क लाइक अ unit, what is important that the member countries must follow same type of foreign relation and defense policy. But in the countries of European Union, we find that the countries are the countries have different. The countries have their own foreign relation and defense policies, and many times these foreign relation and defense policies of different countries of EU are they clash with each other also. ऐसा भी हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ क्लास करने लग जाते हैं. लाइक अगर हम देखें अमेरिका ने जो इराक पे अटैक किया था 2003 में, इन 2003 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. हम लोग पीछे के चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं. अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था, एंड दिस अटैक ऑफ अमेरिका वाज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द UN. UN has not given the mandate to attack Iraq in 2003 when America was saying that Iraq is having WMD, weapons of mass destruction, and on that basis कि इराक के पास weapons of mass destruction है, only that was the most important reason for attacking Iraq by the US. But in the team of UN went there, है ना, we have discussed all these things in the previous chapter. Team of UN went there in Iraq, and they found that no, they did not find any kind of evidence of WMD there. So UN had not given this permission to attack Iraq, but the US went against the mandate of the UN. उसने UN की बात को नहीं माना. UN ने कहा कि अटैक नहीं करना है. Still US ने UN की बात को नहीं माना, and in that attack we have seen that more than 40 countries have supported this military operation of US. military operation, joint military operation था US के साथ. more than 40 countries ने साथ दिया था. इस ये जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें ब्रिटेन जो था उस समय, ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट थे वो टोनी ब्लेयर. सो टोनी ब्लेयर ने पूरी तरह से अमेरिका के इराक इन्वेजन में अमेरिका का साथ दिया था. टोनी ब्लेयर सपोर्टेड दिस एक्ट ऑफ अमेरिका, है ना. और जो न्यू मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के, जो न्यू मेंबर्स थे, उन्होंने भी यूएस का सपोर्ट किया था, ठीक है. लेकिन 2 कंट्री ऐसे थे, जर्मनी एंड फ्रांस, विच अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, जिन्होंने अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया. तो ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के 2 कंट्री जो हैं वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिका के इस एक्ट का, एंड ब्रिटेन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है. न्यू मेंबर कंट्रीज भी कोलिशन ऑफ जो उनका बना था, कोलिशन ऑफ द विलिंग, उसमें उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया. तो ये क्या शो करता है, ये हमारे वीकनेस को शो कर रहा है कि हम एक जैसा
जो कंट्री है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन सबको ये एक्सपेक्टेड होता है कि अगर वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उनको सबको यूनिफॉर्म फॉरेन रिलेशन, यूनिफॉर्म पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, देन ओनली दे कैन बी स्ट्रांगर in the world politics. But in many situations this type of lack of uniformity in the defense policy, in the security policy we find. One example is when US attacked Iraq in the year 2003. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि कंट्रीज जो थे दे हैव डिफरेंट व्यूज, दे एक्टेड डिफरेंटली इन सपोर्टिंग US or not to support US, है ना. EU has not behaved like a unit in that situation. तो this is the weakness of EU. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? We are discussing the weakness of European Union, the aspects which make it a comparatively weaker organization. अगर ये aspects नहीं होते तो ये और भी ज्यादा strong होता. ठीक है. वीकनेस ऑफ EU. पहली चीज क्या है? पहली चीज जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द फॉरेन रिलेशन and defense policies of member countries. तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है. इसमें आप एग्जांपल क्या देंगे, कैसे पता चलेगा, कौन से एग्जांपल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी? US अटैक ऑन इराक इन 2003. 1990 वाले इराकी अटैक की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द अटैक which was done in the year 2003. Okay, so this is a lack of uniformity. And now we come to the second point. What is this other weakness? The other weakness is called Euroscepticism. Okay, this is Euroscepticism. अब ये यूरोस्केप्टिसिज्म से क्या हम मीन करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं इनकी जो यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन करेंसी है वो यूरो है ना. लेकिन बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरो को अपने करेंसी नहीं अडॉप्ट किए, बल्कि उन्होंने अपने कंट्री की जो करेंसी है उसको ही वो अपनी करेंसी बना के चल रहे हैं. तो देयर आर मेनी कंट्रीज who have this feeling कि हम यूरो को नहीं अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर यूरो से वो स्केप कर रहे हैं. they have this feeling of Euroscepticism कि हमें यूरो नहीं अडॉप्ट करना है, बल्कि जो हमारी कंट्री की करेंसी है हम उसी पर रहना चाहते हैं. तो जितने ज्यादा कंट्रीज यूरो को अडॉप्ट करेंगे, यूरोपियन यूनियन के जितने ज्यादा कंट्रीज यूरो को अडॉप्ट करेंगे, EU उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यूरो का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना. और इसमें हम और भी चीजें देखते हैं. ब्रिटेन और फ्रांस
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच राइवलरी थी बिफोर, मतलब जब यूरोप एक बहुत ही बड़ी ताकत थी, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जबकि हम कहते हैं कि यूरोप का डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, तो उस समय यूरोप के दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे, ब्रिटेन और फ्रांस, और इन दोनों के बीच की राइवलरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी राइवलरी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की चली आ रही थी। तो आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जबकि यूरोप का डिवस्टेशन हो जाता है, तो उसके बाद यूरोप के इंटीग्रेशन की बात होती है, और ये होता है कि हमें अपनी जो पुरानी राइवलरी है उसको भूल जाना है। बट एक्चुअली हम देखते हैं कि ईयू में भी ये राइवलरी हमें नजर आती है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की। ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने में फ्रांस ने वीटो किया। फ्रांस ने ब्रिटेन को मेंबर नहीं बनने दिया। आखिर जाकर के 1973 में यूके बना इसका मेंबर यूरोपियन यूनियन का। तो उसके पहले फ्रांस ने इसको नहीं बनने दिया था, फ्रांस वीटो कर देता था, जिसके कारण ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है उसमें जो उसके प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने भी यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा कि हम अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसी का नतीजा है ये जो एक जिसको हम कहेंगे कि एक ब्रिटेन के अंदर एक फीलिंग ऑफ डोमिनेंस था, यूरोस्केप्टिज्म था, फीलिंग ऑफ डोमिनेंस, इन सब के कारण ही आज ये ब्रेक्जिट हुआ है। तो ये वीकनेस में हम ब्रेक्जिट को भी जरूर डालेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अगर ब्रिटेन का जा रहा है, वापस निकल गया है, तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इससे पीछे जाएगा। एक इतनी पावरफुल कंट्री जो यूरोप की है वो इसका मेंबर नहीं रह गया। तो दिस इज इट्स वीकनेस, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन अपना जो दबदबा था उसको खोना नहीं चाहता था। तो ये चीजें हमें आज भी, मतलब जो राइवलरी उतने सदियों पुरानी है, वो राइवलरी आज भी नजर आती है ईयू के अंदर। इसके अलावा भी जैसे कि जो अदर कंट्रीज हैं लाइक डेनमार्क है, स्वीडन है, इन्होंने भी मास्टर्स ट्रीटी जिससे कि ईयू का फॉर्मेशन होता है, उसको इन्होंने भी अपोज किया था। दे हैव रेजिस्ट किया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और यूरो को भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो इस तरह से ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इसमें आपको डेनमार्क और स्वीडन का भी जो यूरोस्केप्टिज्म है इसको इसी के अंदर डाला जा सकता है। डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन, है ना। तो ये सारी कंट्रीज, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द वीकनेसेस ऑफ ईयू। तो हमने ईयू का जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सबसे पहली चीज की यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों जरूरत पड़ती है यूरोपियन यूनियन की, फिर फॉर्मेशन कैसे होता है, देन उसके वो कैसे एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के रास्ते में क्या क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिससे कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है, और क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं जो कि उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने में रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ना। और उसके बाद हमने देखा कि ईयू का इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि इन सब चीजों में उसका इन्फ्लुएंस। और फिर हमने देखा कि ईयू का ये क्या है, वीकनेसेस क्या है ना। इसमें एक आपका कार्टून दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कार्टून में एक टाइटैनिक शिप के थ्रू ईयू को दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस टाइटैनिक शिप पे आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है जिसमें कि 12 गोल्ड स्टार्स बने हुए हैं, वो फ्लैग आपको टाइटैनिक पे दिखता है। तो यहाँ पर जो टाइटैनिक शिप है वो यूरोपियन यूनियन को डिपिक्ट कर रहा है, और वो जा रही है आइसबर्ग से टकराने जा रही है। वी ऑल नो कि टाइटैनिक जो शिप थी वो डूब गई थी। तो ईयू का ये जो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो एफर्ट था, इसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि वो जो आइसबर्ग है दैट इज एन एफर्ट टू मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो हो नहीं पाता, फेल कर जाता है। तो जिससे कि ईयू का जो इन्फ्लुएंस है उसमें कमी आती है, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर पाता है, तो ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूरोपियन यूनियन का जो भी था सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो दूसरा
ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और ये है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। So we move to the next organization, that is ASEAN. So we will see Association of South East एशियन नेशंस, आसियान, है ना। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जैसे कि नाम से यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अबाउट द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, है ना। जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनका यहाँ पर हम ये एसोसिएशन है। अब अगर आप मैप, जो पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का, उसको देखेंगे तो यू मस्ट ऑब्जर्व द मैप। मैप देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर वे में समझ में आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, एशिया का, जैसे इंडिया जो है वो साउथ एशिया में आता है, और इंडिया के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट, हमेशा साउथ ईस्ट क्या कौन सा डायरेक्शन होता है? ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ, है ना। तो दिस इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया यहाँ पर है, सपोज ये हमारा इंडिया, तो इंडिया के इस डायरेक्शन में जो कंट्रीज पड़ती हैं दे कम इन साउथ ईस्ट एशिया, लाइक थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है ना। दीज आर द फिलीपींस हैं, थाईलैंड है, ये सभी जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। और ये जो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के जिन कंट्रीज के हम नाम ले रहे हैं, ये कंट्रीज भी कॉलोनियलिज्म के विक्टिम थे। दीज ऑल कंट्रीज वेयर अंडर द कॉलोनियल रूल। किसका कॉलोनियल रूल था यहाँ पे कुछ कंट्रीज तो थे, वो जापान भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर था। एज यू नो, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर में जापान वॉज वन ऑफ द पावर्स, है ना। तो जापान का इंपीरियलिज्म था उस समय एशिया में। तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के वो जापान के इंपीरियलिज्म का शिकार थे, और बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो यूरोप, दोनों का मतलब यूरोपियन पावर्स भी इनको कॉलोनाइज किए हुए थे, और जापानीज भी इनको कंट्रोल में किए हुए थे, इनको कॉलोनाइज किए हुए थे। और बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि जैसा हमने अपनी कंट्री में जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि कॉलोनियल रूल के अंदर हमारा हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वी फेस्ड। तो इन द सिमिलर वे इन दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो द कंट्रीज फेस्ड द सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द कॉलोनियल पावर। और ये कंट्रीज भी वही हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कंट्रीज आज़ाद होते हैं, दे बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये कंट्रीज जो आज़ाद होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन कंट्रीज के सामने बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंजेस होते हैं, है ना। जैसे हमारी कंट्री इंडिया भी जब आज़ाद हुई तो हमारे सामने भी चैलेंजेस थे, बहुत ही ऐसे चैलेंजेस थे जिसको कि अगर जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इंडिया को एक नेशन के फॉर्म में इमर्ज करना बड़ा मुश्किल होता। जब व्हेन यू विल रीड सेकेंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, देन यू विल रियलाइज, यू विल रीड ऑल दीज चैलेंजेस, है ना। तो इन द सिमिलर वे जिस तरह के प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जिस तरह के चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, उसी तरह का सेम प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज के साथ भी थी, है ना। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही नेशन बिल्डिंग की थी, कैसे अपने आप को एक नेशन के फॉर्म में बिल्ड करना, एक नेशन के बनना,
है ना, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई बट इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ नेशन, बिकॉज जो डिवाइडिंग फैक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा उस समय काम कर रहे थे। तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी नेशन बिल्डिंग की, दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉवर्टी, किस तरह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेल रही थी ये कंट्रीज, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे पॉवर्टी को दूर करके इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रास्ते पर चला जाए। ठीक है, और उसी समय हम जानते हैं कि दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें कि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द ईस्टर्न अलायंस एंड द वेस्टर्न अलायंस। तो इनके सामने ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि किसको ज्वाइन किया जाए, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वर फेसिंग। We will continue with this in the next class.